Hello students, today we are going to read the lesson The Best Christmas Present in the World. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. In the history of the mankind, there are some dates which are significant, which are important. Significant means important. The story that we read, the story you will read mention one such date. The story that we are going to read also, in this story there is a date, there is some historical date, a war between the British and the Germans in 1914. In this story we are going to read a story which mentions about the war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? It was the First World War. Now our story starts here. I spotted it in a junk shop. Spotted means saw. Junk shop means kabadi ki dukan. So I spotted in a junk shop. The author saw in a junk shop in Bridport. Bridport is the name of a city or a town in Britain. So he saw in a junk shop a roll top desk. What is a roll top desk? Let me show you the picture of a roll top desk. These are some of the pictures of roll top desk. Roll top desk is a kind of a desk which have some kind of a cover, a shutter cover which can be open or closed. So the author saw a roll top desk in a junk shop, kabadi ki dukan. The man said it was early 19th century. The shopkeeper said the desk was made in early 19th century. It was a very old roll top desk and it was made of oak wood. I had wanted one. The author wanted to buy a roll top desk, but they were far too expensive. But the problem was the roll top desks are very expensive, so the author didn't able to buy anyone. But now when he spotted this roll top desk in a junk shop, he thought that he may buy one. This one was in bad condition. This roll top desk, as it was very old, so it was in a very bad condition. The roll top in several pieces. The cover, the shutter of the table was in several pieces. टेबल का कवर या जो शटर जो था वो कई जगह से टूटा हुआ था. One leg clumsily mended. Mended means मरम्मत किया हुआ. तो टेबल का एक पैर जो था वो भी बहुत ही खराब तरीके से मरम्मत किया हुआ था. Scotch marks all down one side. Scotch marks means burn marks. So there were also burn marks all down one side. टेबल के एक तरफ जलने के निशान भी थे. It was going for very little money, and as it was in very bad condition, that's why it was going for very little money. I thought I could restore it. Restore means जिसे ठीक कराया जा सके. So author thought that he could restore the desk. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. Although it was a risk to mend this table. इस टेबल को ठीक करवाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिर भी लेखक ये रिस्क लेता है. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. So the author brought the table to his house and he put it in his workroom, which was at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Christmas Eve means Christmas evening. Author इस टेबल की मरम्मत करना शुरू करता है क्रिसमस इवनिंग को. I removed the roll top completely. First of all, the author removed the roll top completely. डेस्क का ऊपर का जो रोल टॉप होता है, जो शटर होता है, उसको ऑथर पूरी तरह से हटा देता है. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स. और टेबल के जो ड्रॉवर्स होते हैं जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, उनको
खोलने की कोशिश करता है। The veneer had lifted almost everywhere. What is veneer? Veneer is a thin layer of plastic or decorative wood or furniture of cheap wood. Veneer एक प्लास्टिक या लकड़ी का बना ही एक डेकोरेटिव लेयर होता है जिससे लकड़ी वगैरह पे लगाया जाता है सजाने के लिए, जैसे कि सनमाइक वगैरह। इसके ऊपर ये जो सजावटी प्लास्टिक या लकड़ी का बना हुआ जो लगा था विनीर, ये कई जगह से उखड़ चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था कि पानी की वजह से ये टेबल खराब हुई। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। न सिर्फ पानी बल्कि आग और पानी दोनों की वजह से ये टेबल पूरी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। टेबल का जो लास्ट ड्रॉवर जो था जिसमें हम सामान रखते हैं, इट वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मीन्स सट टाइट, यानी कि वो ड्रॉवर खुल नहीं रहा था, अटका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑथर ट्राइड टू ओपन इट जेंटली। जेंटली मीन्स आराम से। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, बट in the end he had to use the brute force. Brute force means अपनी पूरी ताकत उसे खोलने के लिए लगानी पड़ती है। I struck it sharply with the side of my fist. Fist means बंद मुट्ठी। लेखक बंद मुट्ठी से उस ड्रॉवर को खोलने की कोशिश करता है। And the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. और जब वो खोलता है तो उसमें उसे एक खाली जगह दिखाई देती है। ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उसी ड्रॉवर के अंदर एक और ड्रॉवर था, एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उस ड्रॉवर के अंदर एक जो ड्रॉवर था उसमें एक टिन बॉक्स था। एक टिन इज ए काइंड ऑफ ए मेटल, तो टिन का बना हुआ एक छोटा बॉक्स था। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. और उस छोटे से बॉक्स के ऊपर सेलोटेप से बंधा हुआ एक पेपर का टुकड़ा था। And written on it in shaky handwriting. Shaky handwriting means ऐसी हैंडराइटिंग जो तब लिखी जाती है जब किसी व्यक्ति का हाथ लिखते समय शेक करता है, हिलता है, और उस समय जैसी हैंडराइटिंग होती है उस प्रकार की हैंडराइटिंग उसमें उस पेपर के ऊपर लिखी हुई थी। एंड व्हाट वाज रिटन ऑन दैट पेपर? जिम्स लास्ट लेटर। जिम का आखिरी लेटर। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और ये लेटर कब रिसीव हुआ है? जनवरी 25, 1915। टू बी बैरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। और उस नोट में ये भी लिखा गया था कि जब मेरा देहांत हो जाए तो मेरे सब के साथ में इस लेटर को भी गाड़ दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब ये नोट तो उस बॉक्स के ऊपर लगा था, लेटर जो था उस बॉक्स के अंदर था, और लेखक को मालूम था कि इस बॉक्स को खोलना गलत है क्योंकि यह किसी और की विरासत है, यह किसी और की वस्तु है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजली डज। लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से, जिज्ञासा की वजह से लेखक उस बॉक्स को खोल देता है। स्क्रपल्स मीन फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। स्क्रपल्स का मतलब होता है ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं जो तब होती है जब हम कुछ गलत करना चाहें और हमारे मन में हिचकिचाहट होती है कि हम ऐसा ना करें, उस चीज़ को बोलते हैं स्क्रपल्स। Inside the box there was an envelope. When the author opened the box, he found an envelope in the box. उसे एक लिफाफा मिलता है। The address read Mrs. Jim McPherson. उस पर एड्रेस लिखा था Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches. 12 Copper Beeches is the name of a lane, name of the street. Bridport, Dorset. ब्रिटपोर्ट और डॉर्सेट ये दोनों जगह के नाम हैं। एक शहर दूसरा स्टेट का नेम हो सकता है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। द ऑथर टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अनफोल्डेड इज द अपोजिट ऑफ फोल्डेड। फोल्डेड मीन्स बंद करना,
Unfolded means खोलना. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. और जो लेटर लिखा गया था वो लिखा गया था December 26, 1914. यानी कि लेटर December 26, 1914 को लिखा गया और लेटर रिसीव किया गया January 25, 1915, यानी कि करीबन एक महीने बाद में. Now we will read the content of the letter here. यहाँ पे अब हम लेटर में क्या लिखा गया था इस बारे में पढ़ेंगे. Actually, this letter was written by a husband to his wife, and the name of the wife is Connie. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. अपनी वाइफ को लेटर लिखते हुए हस्बैंड कह रहा है कि ये लेटर लिखते हुए मैं बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही खास घटित हुआ है, कुछ खास हुआ है. That I must tell you about at once. और वह अपनी वाइफ को इस बारे में बताना चाहता है. We were all standing in our trenches yesterday morning. Actually, the person who is writing the letter, the husband, he is a soldier and he was on duty in the First World War and he is fighting for the British forces against the Germans. And he is writing this letter from the battlefield and he is writing this letter to his wife. What he is writing? We were all standing in our trenches yesterday morning. वो लेटर में लिखता है कि कल सुबह हम सभी सैनिक अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. What are trenches? Long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. जमीन के अंदर लंबी खाई खोद दी जाती है जो कि दुश्मन सेना से छिपने के लिए खोदी जाती. तो जिसने लेटर लिखा है वह अपने साथी सिपाहियों के साथ में ट्रेंचेस के अंदर खाई के अंदर खड़ा था. क्रिसमस मॉर्निंग, और जिस दिन की वह बात कर रहा है उस दिन क्रिसमस का त्यौहार था. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और ये सिपाही अपनी पत्नी से कह रहा है कि सुबह बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत थी जैसे कि हर सुबह खूबसूरत होती है और उतनी ही ठंडी और बर्फीली थी जितनी कि क्रिसमस के दिनों में वह होती है. क्रिसमस का त्यौहार क्योंकि सर्दियों में आता है और उस समय यूरोप के अंदर, खासकर नॉर्दर्न यूरोप के अंदर बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ती है. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट. सिपाही अपनी पत्नी से कह रहा है कि काश इसकी शुरुआत हमने की होती. वो किस चीज़ की बात कर रहा है वो हम आगे इस लेटर में पढ़ेंगे. बट द ट्रुथ आई एम असेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट. लेकिन वो कह रहा है कि मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी शुरुआत फ्रिज ने करी. नाउ व्हाट इज़ फ्रिज? फ्रिज ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर. फ्रिज इज ए कॉमन जर्मन नेम. जो अंग्रेज जो सिपाही थे वो जर्मन सोल्जर्स जो थे उनको कॉमन नेम से पुकारते थे फ्रिज. जो भी जर्मन सोल्जर्स थे उनको कॉमनली फ्रिज कहते थे हर जर्मन सिपाही को, क्योंकि फ्रिज नाम जो है जर्मनी में एक बहुत ही कॉमन नाम है. और जो जर्मन सैनिक जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स को कॉमन नाम टॉमी से पुकारते थे क्योंकि टॉमी जो है बहुत ही कॉमन ब्रिटिश नेम है. सिपाही अपनी पत्नी से कह रहा है कि मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि जिस चीज़ की शुरुआत शायद हमें करनी चाहिए थी, ब्रिटिश सोल्जर्स को करनी चाहिए थी, उसकी शुरुआत फ्रिज करते हैं, यानी कि जर्मन सोल्जर्स करते हैं. फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर्स को दुश्मन सेना की तरफ से, जो कि दुश्मन सैनिक भी अपने ट्रेंचेस, अपनी खाइयों के अंदर खड़े थे, वहाँ से एक वाइट फ्लैग दिखाई देता है. एंड वी ऑल नो दैट वाइट फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ पीस. वाइट फ्लैग जो है वो शांति का प्रतीक है. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. फिर दुश्मन सेना की तरफ के सिपाही उनको नो मैंस लैंड यानी कि
जहाँ पे ना तो ब्रिटिश सोल्जर खड़े थे और ना ही जर्मन सोल्जर थे, वहाँ से जर्मन सोल्जर ब्रिटिश सोल्जर्स को कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी जैसा कि बताया गया है कि ब्रिटिश सोल्जर्स को जर्मन कॉमन नेम टॉमी नाम से पुकारते थे और वो उन्हें हैप्पी क्रिसमस टॉमी कह रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fridge, same to you." जब ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि पूरी तरह से सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे इस घटना से, वो थोड़ी देर बाद में वो भी जर्मन सोल्जर्स को सेम टू यू कहकर क्रिसमस की बधाई देते हैं। आई थॉट दैट वुड बी दैट। जो अंग्रेज सिपाही जिसने ये लेटर अपनी पत्नी को लिखा है वो कह रहा है कि मुझे लगा था कि शायद ये बात इतनी ही रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। वी ऑल डिड, और वो कहता है कि हम सभी को ऐसा ही लगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन तभी जर्मन सैनिकों में से एक सैनिक जिसकी ग्रे कलर का ग्रेट कोट यानी कि एक लंबा कोट जो कि घुटनों के नीचे तक जाता है, उसने जर्मन सोल्जर ने एक ग्रे कलर का लंबा कोट पहन रखा था। वह अपनी खाई में से बाहर निकलता है वेविंग ए वाइट फ्लैग, और उसके हाथ में सफ़ेद रंग का फ्लैग था, शांति का प्रतीक था। डोंट शूट लैट्स, समवन शाउटेड। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि कोई गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और कोई भी गोली नहीं चलाता। Then there was another fridge up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the man. It's a trick. But it wasn't. और फिर एक एक करके और जर्मन सोल्जर्स अपनी खाई में से बाहर निकलते हैं, और यह अंग्रेज सोल्जर जिसने अपनी पत्नी को ये लेटर लिखा, उसने अपने साथी अंग्रेज सैनिकों से कहा कि अपने सर नीचे रखो। I told the man, it's a trick. वह अपने साथी सैनिकों से कहता है कि यह ट्रिक हो सकता है, यह दुश्मन सेना की कोई चाल हो सकती। बट इट वॉजेंट, लेकिन यह कोई ट्रिक नहीं था, यह दुश्मन सेना की कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन सिपाही अपने सर के ऊपर एक बॉटल लिए हुए था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। और वह टॉमी यानी ब्रिटिश सिपाही से कह रहा था आज क्रिसमस है और हमारे पास स्नैप्स है। नाउ व्हाट इज स्नैप्स? स्नैप्स विच इज़ प्रोनाउंस एज स्नैप्स, ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। एक प्रकार की जर्मन ड्रिंक होती है, जर्मनी में बनी हुई एक ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन अनाज से बनती है। ही सेज वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉस भी है। वी मीट यू, यस, और हम तुमसे मिलना चाहते हैं। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land. और इस समय तक जर्मन सेना की तरफ से दर्जनों की संख्या में, बड़ी संख्या में जर्मन सैनिक अपने ट्रेंचेस, अपनी खाई में से निकलकर अंग्रेज सैनिकों की तरफ बढ़ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनमें से किसी के भी पास में राइफल, बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ब्रिटिश आर्मी की तरफ से भी एक सोल्जर जिसका नाम था प्राइवेट मॉरिस, वह खड़ा होता हर कहता है सिपाहियों हमें भी खड़ा होना चाहिए, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर अंग्रेज सिपाही भी एक एक करके अपनी ट्रेंचेस, अपनी खाई में से बाहर निकलने लगते। आई वॉज द ऑफिसर, नाउ द पर्सन हु इज़ राइटिंग दिस लेटर टू हिज वाइफ, ही वॉज ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। यह लेटर जो सैनिक अपनी पत्नी को लिख रहा है वह ब्रिटिश आर्मी का एक अफसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, और वो लेटर में लिखता है अपनी पत्नी से कि मुझे अपने सैनिकों को जब वो बाहर निकल रहे थे, अंग्रेज सैनिकों को, तो उन्हें वहीं पे रोकना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। लेकिन वो लेटर में लिखता है कि सत्य तो यह है कि यह चीज़ मेरे दिमाग में भी उस समय नहीं आई। ऑल अलॉन्ग द लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। और वो लेटर में आगे लिखता है कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से सिपाही एक दूसरे की तरफ लाइंस के अंदर बढ़ रहे थे।
grey coats and khaki coats. The German soldiers were wearing grey coats while the British soldiers were wearing khaki coats. Meeting in the middle, और वो नो मैंस लैंड में आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक ये ब्रिटिश ऑफिसर भी था जिसने अपनी पत्नी को, कॉनी को, यह लेटर लिखा था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. और ये अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि मैं भी इस सब का एक हिस्सा था. इस युद्ध के बीच में हम एक दूसरे से शांति से मिल रहे थे. यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर. और यह सिपाही आगे लिखता है कि जब मैंने एक जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरी क्या फीलिंग्स थी, मेरी क्या भावनाएं थी, उसे मैं बता नहीं सकता. हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड. इस जर्मन ऑफिसर ने हाथ आगे बढ़ाते हुए इस ब्रिटिश ऑफिसर से मिलने की कोशिश की. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. The German officer's name was Hans Wolf. I am from Düsseldorf, and he said that he belonged to Düsseldorf. Düsseldorf is the name of a city or a town in Germany. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. और ये जर्मन सैनिक कहता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं. और ये जर्मन ऑफिसर कहता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ. व्हाट इज सेलो? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायोलिन. तो ये जर्मन ऑफिसर एक सिपाही तो था, लेकिन अपने खाली समय में ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो भी बजाता था. एंड दिस जर्मन ऑफिसर विश्ड the British officer Happy Christmas. Captain Jim McPherson, I replied. Now, Connie's husband, who is writing this letter to Connie, his name was Jim McPherson, and he had a post of captain in the army, in the British army. And the British officer also wished the German officer Happy Christmas. I am a school teacher from Dorset in the west of England. And Jim McPherson replied that I am a school teacher from Dorset in the west of England. यह ब्रिटिश ऑफिसर जो लेटर लिख रहा है अपनी पत्नी को, वह एक सिपाही के अलावा एक टीचर भी था और वह अपने गृह नगर डॉर्सेट में टीचिंग का काम करता था. एंड डॉर्सेट विच इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस. And when the German officer heard the name of the Dorset, he smiled and he said, I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. ब्रिटिश ऑफिसर अपनी पत्नी को आगे लेटर में लिखता है कि हमने आपस में रम शेयर करी और सॉस जो जर्मन ऑफिसर अपने साथ में लेकर आया था उसको भी शेयर किया. एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड. और हमने बातें की. और वो अपनी पत्नी से कह रहा है, कॉनी तुम विश्वास नहीं कर सकती हमने कितनी और कैसे बातें की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. दिस ब्रिटिश ऑफिसर राइट्स दैट द जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ स्पोक परफेक्ट इंग्लिश. उस जर्मन ऑफिसर को जर्मन होते हुए भी बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश आती थी. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. लेकिन फिर उसके साथ बात करने पर यह भी पता चला कि उसने जीवन में कभी भी वह डॉर्सेट नहीं आया था. कभी नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वह कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. वह जर्मन ऑफिसर जो कुछ भी जानता था वह सब कुछ उसने अपने स्कूल में पढ़ा था, अपनी किताबों में पढ़ा था. His famous writer was Thomas Hardy. और उस जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ की जो पसंदीदा लेखक जो था वो था थॉमस हार्डी. His favorite book Far from the Madding Crowd. और हैंस वुल्फ की जो पसंदीदा किताब जो थी उसका नाम था Far from the Madding Crowd, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है. तो ये ब्रिटिश ऑफिसर यानी कि जिम मैकफर्सन और
जर्मन ऑफिसर यानी कि हैंस वुल्फ आपस में कई विषय के ऊपर, कई सब्जेक्ट्स के ऊपर बातें कर रहे हैं कि उनके पसंदीदा लेखक कौन है, उनकी पसंदीदा किताबें कौन सी है, etc. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और ये ब्रिटिश ऑफिसर जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को आगे लेटर में लिख रहा है कि हम वहाँ पे युद्ध के मैदान में, नो मैंस लैंड में, बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय, ये तीनों ही कैरेक्टर्स के नेम हैं जो कि किताब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से लिए गए हैं। और इन कैरेक्टर्स के बारे में ये दोनों ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हैं। He had a wife and one son born just 6 months ago. ऑफिसर की पत्नी थी और एक लड़का भी था जो कि युद्ध से सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. और यह ब्रिटिश ऑफिसर जिम मैकफर्सन आगे लिखता है कि जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे खाकी कोट और ग्रे कोट में ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स ग्रुप के अंदर आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, एंड दे वर स्टैंडिंग इन ग्रुप्स and they were smoking, they were laughing, they were talking with each other, they were drinking and they were eating whatever they had. जो कुछ भी उनके पास खाने पीने का सामान था उनको वो आपस में शेयर कर रहे थे। Hans Wolf and I said what was left of your wonderful Christmas cake. जिम मैकफर्सन की पत्नी कॉनी ने जिम मैकफर्सन के लिए जो केक भेजा था, इस केक को जिम मैकफर्सन हैंस वुल्फ ब्रिटिश ऑफिसर के साथ में शेयर करता है। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. और हैंस वुल्फ को लगता है कि जो उसने मार्जिपन, केक के ऊपर जो मार्जिपन होता है, वो मार्जिपन उसने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। What is marzipan? A sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. केक के ऊपर शक्कर, एग्स और आमंड्स, बादाम, जो एक पेस्ट बनाया जाता है और केक के ऊपर लगाया जाता है, उसे बोलते हैं मार्जिपन। इन आमंड्स द एल इज साइलेंट, सो वी विल प्रोनाउंस इट आमंड्स। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और जिम मैकफर्सन भी हैंस वुल्फ की इस बात से एग्री करता है कि हाँ, वाकई में मार्जिपन बहुत ही स्वादिष्ट है। वह हैंस वुल्फ की सभी बातों से एग्री करता है, जबकि हैंस वुल्फ उसका एनिमी था, उसका शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। और ये ब्रिटिश ऑफिसर मैकफर्सन लिखता है कि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा क्रिसमस पार्टी मैंने आज तक नहीं मनाई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। और तभी कोई सैनिक एक फुटबॉल कहीं से लेकर आ जाता है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। और ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स ने जो ग्रेट कोट्स, जो लंबे कोट पहन रखे थे, वो उतार के उनसे गोल पोस्ट, फुटबॉल के लिए गोल पोस्ट बना देते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और फिर टॉमी यानी ब्रिटिश सोल्जर्स और फ्रिज यानी कि जर्मन सोल्जर्स आपस में फुटबॉल मैच खेलने लगते हैं। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Hans Wolf, जर्मन ऑफिसर, और जी मैकफर्सन, ब्रिटिश ऑफिसर, ये खड़े थे और अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे, चीयर कर रहे थे, स्टैम्पिंग आवर फीट, और साथ में अपने पैरों को बार बार ज़मीन पे पटक रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड्स एज मच एज एनीथिंग, ताकि अपने पैरों को ठंडा होने से बचा सके, क्योंकि सर्दी बहुत थी, इस वजह से अपने पैरों को भी वो कंटिन्यूस ज़मीन पे पटक रहे थे ताकि उनके पैरों में गर्माहट रहे। देयर वॉज ए मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण या टाइम। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और एक समय ऐसा आया जब
जिम मैकफर्सन को ऐसा लगा कि उसके मुंह से जो सर्दियों में जैसे अक्सर होता है कि ज़्यादा सर्दी पड़ने पर, कोहरे पड़ने पर मुंह में से हमें सफ़ेद भाप निकलती हुई दिखाई देती है, वैसे जिम मैकफर्सन को अपने मुंह में से और हैंस वुल्फ के मुंह में से जब वो बोल रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें जो हैं हवा में आपस में मिल रही है। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। हैंस वुल्फ भी यह देखता है और देखकर जिम मैकफर्सन की तरफ मुस्कुरा देता है। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और हैंस वुल्फ कहता है कि जिम मैकफर्सन, मुझे लगता है हमें इस वॉर, इस युद्ध को इसी तरह से सुलझाना चाहिए, इसी तरह से इसका हल निकालना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेल के। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइव्स बिकम विडोज। फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है, इसमें कोई बच्चा ऑर्फन, अनाथ नहीं होता है और कोई पत्नी विडो, विधवा नहीं होती है। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। ब्रिटिश ऑफिसर जिम मैकफर्सन जवाब देता है कि मैं फुटबॉल की जगह क्रिकेट का खेल खेलना चाहूँगा। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और फिर वो हंसता हुए कहता है कि शायद तब हम टॉमीज यानी हम ब्रिटिशर्स के जीतने के कुछ चांसेस बन जाए। इन ब्रिटेन cricket and football both are very popular, but in Germany only football is popular, and that's why Jim McPherson is telling Hans Wolf that he would prefer to play cricket. We laughed at that. Jim McPherson की यह बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। And together we watched the game. और उन दोनों ने मिलकर फिर वो पूरा फुटबॉल मैच देखा। Sad to say, Connie Fridge won 2 goals to 1। और लेटर में ब्रिटिश ऑफिसर लिखता है कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो 2 goals to 1 यानी 2-1 से वो मैच जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। लेकिन फिर हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर हंसते हुए उदारता से कहता है कि ब्रिटिश सोल्जर्स का, ब्रिटिश सिपाहियों का जो गोल पोस्ट थी वो ज़्यादा वाइडर था, ज़्यादा चौड़ा था, इस वजह से हम जर्मन सोल्जर्स जीत गए। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। फिर वह समय भी आया जब गेम ओवर हो गया एंड द अदर आइटम्स एंड द अदर ईटेबल्स लाइक स्नैप्स, रम, सॉसेज हैड ऑल सिंस रन आउट। ये सारे ईटेबल्स भी सब अब ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। और हमें मालूम था कि ये खुशी का माहौल जो अब तक था वो इतना ही है, अब ये ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। जाते समय जिम मैकफर्सन हैंस वुल्फ को विश करता है और आशा करता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत जल्दी मिलेगा एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। और यह भी आशा करता है कि यह युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और सभी अपने अपने घर को जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। एंड हैंस वुल्फ रिप्लाइड दैट यस, दैट इज़ वॉट every soldier on both the side wants. They want peace. Take care, Jim McPherson। और हैंस वुल्फ जिम मैकफर्सन को अपना ख्याल रखने को कहता है। I shall never forget this moment nor you। और हैंस वुल्फ कहता है कि यह मोमेंट, यह क्षण न तो मैं कभी भूल पाऊंगा और शायद न ही तुम कभी इसे भूल पाओगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly। और फिर हैंस वुल्फ धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है उस जिम मैकफर्सन से दूर, unwillingly यानी बिना इच्छा के। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। जाते समय हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर जिम मैकफर्सन की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन करता है
और फिर वो उन 100 की संख्या में ग्रे कोट्स जर्मन सोल्जर्स का एक हिस्सा बन जाता है, जो कि सभी फिर से अपनी ट्रंचेस, अपनी खाई में जाकर खड़े हो जाते हैं. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. Dugouts means a shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it. Dugouts उनको कहते हैं जो सिपाहियों की शेल्टर, सुरक्षा के लिए ज़मीन में गड्ढे खोद कर बनाए जाते हैं और फिर उन गड्ढों को ऊपर से थोड़ा कवर कर दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है डगआउट्स. ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं, ये उस रात जब अपने डगआउट्स के अंदर थे, तब उन्हें दुश्मन सेना, जर्मन सैनिकों की डगआउट्स में से एक कैरल एक क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर जो धार्मिक गीत गाया जाता है, उन्हें कैरल कहा जाता है. तो ये जर्मन सोल्जर्स जो थे अपने डगआउट्स के अंदर कैरल गा रहे थे. एंड दे वर सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट. और जो कैरल जो गा रहे थे उसका नाम था स्टिलनेस साइलेंट नाइट. और बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट. और ब्रिटिश सोल्जर्स भी उनका साथ देते हैं और वो भी एक गीत गाते हैं जो था वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट. वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. इस तरीके से जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स अपने अपने डगआउट से ये कैरल्स, ये धार्मिक गीत जो क्रिसमस के त्यौहार पर गाए जाते हैं, ये गाते हैं और थोड़ी देर बाद में सब साइलेंट हो जाते हैं. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. इन सिपाहियों ने आपस में एक पीस, शांति का समय बिताया था, साथ में गुडविल, एक दूसरे के लिए अच्छाई की कामना की थी. ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. और जिम मैकफर्सन लेटर में लिखता है कि यह समय वह समय है जो मैं अपने जीवन भर इस समय को याद रखूँगा. डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी. आगे लेटर में जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को लिखता है कि प्रिय कॉनी, अगले क्रिसमस तक ये वॉर, ये युद्ध जो हैं, ये कुछ भी नहीं रहेगा. इसकी सिर्फ बुरी यादें ही बच जाएगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैड हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. और वो लेटर में अपनी पत्नी को आगे लिखता है, जो कुछ आज हमारी सेनाओं के बीच में हुआ, सैनिकों के बीच में हुआ, उससे यह तो पता लगता है कि दोनों सेनाएं पीस चाहती है, शांति चाहती है. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. वो कॉनी को आगे लिखता है लेटर में कि हम जल्द मिलेंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है. योर लविंग जिम. So this letter, which was actually written by the British officer Jim McPherson to his wife Connie when Jim McPherson was fighting for the British Army in the World War I, and he is writing this letter from the battlefield. तो यह लेटर वह लेखक जो यह कहानी हमें सुना रहा है, उसे उस बॉक्स में वह लेटर मिलता है और इस लेटर को पढ़ता है और तब उसे पता चलता है कि यह लेटर किसी ब्रिटिश ऑफिसर जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया था और उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम कॉनी है, उसको यह लेटर लिखा था. इस लेटर में क्या लिखा गया था, यह हमने अभी पढ़ा. आगे इस कहानी में क्या होता है हम पढ़ते हैं. थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. लेखक जो है इस लेटर को पढ़ता है और फिर से उसको फोल्ड करके एनवेलप के अंदर डाल देता. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. नाउ द ऑथर couldn't able to sleep all night. By morning I knew what I had to do. सुबह तक लेखक ने यह निर्णय ले लिया था, यह सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है. I drove into Bridport just a few miles away. वो गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट जाता है, जो कि जहाँ पे लेखक रहता था उससे कुछ ही मील, कुछ ही किलोमीटर दूर था. I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. और फिर उसे एक लड़का मिलता है जो कि अपने कुत्ते को सैर करा रहा था. उससे पूछता है where Cooper Beaches was. Cooper Beaches जिम मैकफर्सन
ब्रिटिश ऑफिसर के घर का एड्रेस था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट सेल। लेकिन जब लेखक जिम मैकफर्सन के घर पे पहुंचता है तो हाउस नंबर 12 जो था वह और कुछ भी नहीं था, एक जला हुआ खंडर बचा था। द रूफ गैपिंग, उस घर की जो रूफ जो थी उसमें जगह जगह गैप आए हुए थे। उस घर की जो रूफ जो थी वो भी पूरी तरह से फटी हुई टूटी हुई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और घर के जो विंडोज़ जो थे वो पूरी तरह से बंद थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। लेखक पड़ोस में पूछने की कोशिश करता है कि कोई बता सकता है कि मिसेस मैकफर्सन, जब मैकफर्सन की पत्नी, अभी कहाँ रहती है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, और पड़ोस में एक व्यक्ति जिसने स्लीपर्स पहन रखी थी वो जवाब देता है, ही न्यू हर वेल, वह मिसेस मैकफर्सन को अच्छी तरह से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट मडल हेडेड, और वह बूढ़ा आदमी कहता है कि वह एक अच्छी महिला है। ए बिट मडल हेडेड, लेकिन कुछ मडल हेडेड है, यानी कि कुछ confused minded है। Muddle headed means confused, but at her age she was entitled to be, wasn't she? लेकिन वो कहता है कि जितनी उनकी उम्र हो चुकी है, जितनी बूढ़ी हो चुकी है, शायद इसी कारण अब वो muddle headed है, confused है, ज़्यादा उनकी सोचने समझने की ताकत नहीं है। 101 years old, and that old man said that Mrs. Macpherson is now maybe 101 years old, कि शायद अब वो 101 साल की हो चुकी है। She had been in the house when it caught fire, और वह बूढ़ा आदमी यह भी बताता है कि जब इस घर में आग लगी थी तब मिसेस मैकफर्सन इसी घर में थी। No one really knew how the fire had started, कोई भी ये नहीं जानता कि उनके घर में आग कैसे लगी। But it could well have been candles, she used candles rather than electricity, लेकिन शायद ये आग कैंडल्स से लगी थी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. मिसेस मैकफर्सन कैंडल्स को ज़्यादा यूज़ करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। The fireman had got her out just in time. आग बुझाने वाले फायरमैन ने सही समय पर मिसेस मैकफर्सन को घर से बाहर निकाल दिया था। She was in a nursing home now, he told me, and that old man told the author that Mrs. Macpherson was now in a nursing home in a hospital, and the nursing home is situated in Burlington House on the Dorchester Road, on the other side of the town. So the old man gave the address of the nursing home to the author. I found Burlington House nursing home easily enough. The author was able to find the Burlington House nursing home address very easily. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided apple on the top. जब लेखक उस नर्सिंग होम में पहुंचता है तो वहाँ पे उसे क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर जो सजावट की जाती है वो उसे दिखाई देती है, और एक साइड में उसे एक क्रिसमस ट्री भी नज़र आता है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. ऑथर नर्सिंग होम में जाके कहता है कि वह मिसेस मैकफर्सन का एक फ्रेंड है और मिसेस मैकफर्सन के लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया है। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. लेखक को बाहर से ही डाइनिंग रूम नज़र आ रहा था। वहाँ पे कुछ पेशेंट्स और कुछ स्टाफ नज़र आ रहे थे जिनकी सर के ऊपर पेपर की बनी हुई हैट्स पहनी हुई थी, और वो सभी मिलकर क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर कुछ गाना गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू। मैट्रॉन मीन्स द इंचार्ज ऑफ दैट नर्सिंग होम। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू and seemed happy enough to see me.
मेट्रोन जो इंचार्ज जो थी उसने भी अपने सर के ऊपर हैट पहन रखी थी और वह लेखक से मिलकर बड़ी खुश होती है। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और मेट्रोन इंचार्ज लेखक को खाने के लिए भी कुछ देती है। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वह लेखक के साथ में कॉरिडोर से होती हुई, गैलरी से होती हुई जहाँ पे मिसेस मैकपर्सन थी वहाँ पे लेखक को लेकर जाती है। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ अदर्स, शी टोल्ड मी। वह लेखक से कहती है मिसेस मैकपर्सन दूसरे पेशेंट्स के साथ में नहीं है, उन्हें अलग से रूम में रखा गया है। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। और वो कहती है मिसेस मैकपर्सन आज बड़ी कन्फ्यूज थी, इस वजह से हमने सोचा कि उन्हें अलग से कमरे में रेस्ट करने दी जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। और मेट्रोन आगे बताती है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स तो कोई है नहीं और इसी वजह से उन्हें कोई मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और वो कहती है कि आज आपसे मिलकर मिसेस मैकपर्सन बड़ी खुश होंगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me. कंजर्वेटरी एक ऐसा रूम या हॉल होता है जो घर से बाहर की तरफ होता है और जिसकी छत और दीवारें ग्लास कांच की बनी हुई होती है। इसे एक सन लॉन्च के जैसे यूज़ किया जाता है जहाँ पे धूप सेकी जा सके, या फिर ऐसे पौधे रखे जाते हैं जो कि डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं। ऐसे पौधों को रखने के लिए भी कंजर्वेटरी का यूज़ किया जाता है। विकर चेयर्स उन चेयर्स को कहते हैं जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जा सके। ही टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो मेट्रोन जो इंचार्ज होती है नर्सिंग होम की, वो ऑथर को कंजर्वेटरी में लेके जाती है और जहाँ पे विकर चेयर्स लगी हुई थी और पॉटेड प्लांट्स गमलों के अंदर पौधे लगे हुए थे। एंड देन द मेट्रोन लेफ्ट हिम। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. मिसेस मैकपर्सन जो थी वो व्हील चेयर में बैठी थी और उनकी हाथ जो थे फोल्ड करे हुए उनके लैप, उनकी गोद में रखे हुए थे। She had silver white hair pinned into a wispy bun. उनके सिल्वर वाइट कलर के हेयर थे जो कि बन यानी कि जुड्डे में बंधे हुए थे। विस्पी का मतलब होता है वह बाल जो घने न हो, हल्के बाल हो, और बन मीन्स जुड्डा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन एंड शी वॉज गेजिंग मीन्स लुकिंग कंटिन्यूसली एट वन प्लेस। मिसेस मैकपर्सन वॉज गेजिंग लुकिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी vacantly. When the author greeted Mrs. McPherson, hello, Mrs. McPherson turned and looked at the author vacantly. ऑथर जब मिसेस मैकपर्सन को हेलो कहता है तो मिसेस मैकपर्सन जब मुड़ती है तो उनकी आंखों में वैकेंट, तो उनकी आंखों में एक खालीपन था। उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति कौन है और कहाँ से आया है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, एंड द ऑथर विश्ड कॉनी मैकपर्सन हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। और लेखक कॉनी मैकपर्सन को कहता है कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब ऑथर कॉनी मैकपर्सन से बोल रहा था तो कॉनी मैकपर्सन सिर्फ लेखक के चेहरे को देख रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. Recognition means पहचानना। जब लेखक कॉनी मैकपर्सन को वो छोटा सा बॉक्स देता है जिसमें वो लेटर था जो कॉनी मैकपर्सन के पति ने लिखा था, तो ऐसा लगता है कि कॉनी मैकपर्सन ने पहचान लिया है और कॉनी मैकपर्सन के चेहरे पे एक ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी की चमक आ जाती। I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening. हालांकि लेखक
कॉनी मैकपर्सन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से उसे उस कबाड़ी की दुकान में वह डेस्क मिली, किस प्रकार से लेखक को वह लेटर मिला, लेकिन शायद मिसेस मैकपर्सन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, या फिर शायद वो कुछ सुन नहीं रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग। कुछ देर के लिए कॉनी मैकपर्सन कुछ भी नहीं बोलती है, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। टेंडरली मीन्स नाजुकता से। लेकिन कुछ देर के लिए मिसेस मैकपर्सन उस लेटर को अपने फिंगर टिप से थोड़ी देर के लिए हिलाती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। और फिर अचानक मिसेस मैकपर्सन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए लेखक के हाथ अपने हाथों में ले लेती। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड देयर वर टीयर्स इन हर आइज। टीयर्स, आंसू। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। और वो लेखक से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और मिसेस मैकपर्सन कहती है लेखक से कि यह मेरी जीवन का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। जिम, मेरे पास आओ, यहाँ आकर बैठो। मिसेस मैकपर्सन गलती से लेखक को अपना हस्बैंड जिम मैकपर्सन समझ बैठी है और वो लेखक को अपने पास में बैठने को बोलती है। I sat down beside her and she kissed my cheek, and so the author sat beside her. Beside her means पास में बैठता है, and Mrs. Macpherson kissed his cheek. Cheek means गाल. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. और मिसेस मैकपर्सन, जो कि ऑथर को अपना हस्बैंड जिम मैकपर्सन समझ रही है, उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा लिखा हुआ लेटर अक्सर पढ़ा है और मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज़ें अपने मन में, अपने हेड में, अपने दिमाग में सुना करती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ में हो। एंड नाउ यू आर। और देखो, आज तुम वाकई में मेरे साथ में हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब क्योंकि तुम खुद आ चुके हो, इसलिए तुम खुद मुझे ये लेटर फिर से पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, जिम डियर। और वो लेखक को जिम कहते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाओगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। एंड शी सेज दैट आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। I'd love that so much. मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने बहुत ही अच्छा लगेगा। And then perhaps we will have some tea. और फिर शायद हम थोड़ी चाय लेंगे। I've made you a nice Christmas cake, marzipan all around. और वह ऑथर को, जिसे जिम समझ रही थी, उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है और उसके ऊपर मार्जिपन भी लगाया है। I know how much you love marzipan. और वो कहती है कि मुझे मालूम है तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। This story written by Michael Morpurgo. Thank you.